Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and friends. Today we will start chapter 4, that is bioenergetics. And bioenergetics is one of the most important and interesting chapter of first year biology. In this chapter we will study about two important metabolic processes that are photosynthesis and respiration. But this video is about a brief introduction of the chapter. So we will start with bioenergetics. What is bioenergetics? Bioenergetics is a combination of two words, bio and energetics. Bio comes from living organisms or from life, and energetics means related to energy. So all the energy processes taking place inside the living organisms are known as bioenergetics. So the study of energy transformation in living systems is known as bioenergetics. Energy transformation क्या है? Energy transformation is the change of energy from one form to another form. As we know that energy exists in many forms like light energy, chemical energy, mechanical energy or heat energy. So conversion of one form of energy into another form is known as energy transformation. According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इस तरह के प्रोसेस को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called metabolic process or metabolism. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है या ब्रेकिंग होता है. सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स और सिंथेसिस ऑफ बॉन्ड्स. सिंथेसिस ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में मिल रहे हैं और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो इस तरह के रिएक्शंस में, इस तरह के प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है. और ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स या ब्रेकिंग प्रोसेस में दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू टू सब यूनिट्स. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. So these are metabolic processes, and metabolic processes are continuously involved in energy transformation. We know that all living organisms need energy to drive metabolic activities. इस तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ड्राइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन सब के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन सब के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सन है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी for all life forms on earth. But this light energy cannot be used by living organisms directly to drive metabolic processes. यानी living organisms directly metabolic processes को run करने के लिए solar energy use नहीं कर सकते. Living organisms के लिए energy chemical form में चाहिए होती है. They need energy in chemical form or they need chemical energy. Chemical energy is that energy which is stored in different organic or inorganic compounds. For example, living organisms में energy carbohydrates, proteins या lipids में store होती है. As an example, photosynthesis की बात करते हैं. Photosynthesis is a process in which one form of energy is converted into another form. What is photosynthesis actually? Photosynthesis literally means synthesis using light. Photo का मतलब है light और synthesis to make or to manufacture. So it means synthesis using light. This is a process in which green plants synthesize their organic food from water and carbon dioxide using sunlight as a source of energy. Photosynthesis वो process है जिनमें green plants sunlight की energy को use करके water और carbon dioxide से अपने लिए organic food synthesize करते हैं. जितने भी autotrophic organisms हैं जो खुद अपने लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. तो उनमें एक खास किस्म के पेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको फोटोसिंथेटिक पेगमेंट्स कहते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस
use or capture light energy and convert it into chemical energy. देखिए फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स या रॉ मटेरियल क्या यूज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल और वाटर यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल. ये फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल रिएक्शन है. लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, इसके लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है. यानी ये ग्रीन प्लांट्स के उन पार्ट्स में होता है जहां पे क्लोरोफिल मौजूद हो. और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है. लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है फोटोसिंथेसिस में. यानी इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो कहां से आती है, वो सनलाइट प्रोवाइड करता है वो एनर्जी. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. लाइट की दो तरह की प्रॉपर्टीज है. द फर्स्ट वन इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका हमने अभी जिक्र किया है. सो अ बीम ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स and another property is electromagnetic waves. There is a broad range of electromagnetic waves in sunlight, starting from gamma rays up to radio waves. But photosynthesis में एक small portion use होता है sunlight का, जिसको visible range कहते हैं. यानी gamma rays, x rays, ultraviolet rays, then infrared, microwave and radio waves. लेकिन इसका एक छोटा पोर्शन यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसको कहते हैं विजिबल रेंज और विजिबल स्पेक्ट्रम. ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान जो एक छोटा सा पोर्शन है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेंज कहते हैं, जिसका वेवलेंथ 390 से 760 नैनोमीटर के दरमियान होता है. व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स. ओके, यानी ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान यानी पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ वेरी करता है फ्रॉम गामा रेस टू रेडियो वेव्स. गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. अब फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज होती जाती है एज द वेवलेंथ इंक्रीज. यानी द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल, यहां से जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, रिलीज होते हैं, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस रेडियो रेंज. रेडियो वेव से जो फोटॉन एमिट होते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. यहां से जो फोटॉन एमिट होते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. सो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ्स. फोटोसिंथेसिस सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है. प्लांट्स के लिए जो सुटेबल रेंज है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है विजिबल स्पेक्ट्रम, which ranges from 390 to 760 राउंड अबाउट. इसी रेंज में जितने वेवलेंथ्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा मौजू होते हैं, क्योंकि जो हाई एनर्जी वेवलेंथ्स होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होता है और एनर्जी ज्यादा होती है, वो लिविंग सिस्टम्स के लिए डैमेजिंग होती है, वो लिविंग सिस्टम को डैमेज करती है. और जो लो एनर्जी वेवलेंथ्स होती है, दे डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सूरज से ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, लेकिन हमारे बायोस्फीयर में मोस्टली जो लाइट पहुंचती है वो विजिबल रेंज में होती है. क्यों? क्योंकि जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है उनको ओजोन लेयर या जितने भी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं उसको स्क्रीन करते हैं इन रेडिएशंस को, यानी इनको बायोस्फीयर में आने नहीं देते. और जो लोअर एनर्जी वेवलेंथ्स है, ये एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में मोस्टली ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, और मोस्टली जो अर्थ पे जो लाइट पहुंचती है, जो अर्थ को स्ट्राइक करती है, वो मोस्टली विजिबल रेंज में होती है. अब जितनी लाइट अर्थ पे स्ट्राइक करती है, ग्रीन प्लांट्स पे स्ट्राइक करती है, ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ दैट लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि लाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? Carbon dioxide is one of the raw materials used in photosynthesis. The other raw material is water. Carbon dioxide is fixed during the process of photosynthesis in organic compounds. Photosynthesis के दौरान plants ग्लूकोज बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लूकोज का हिस्सा बनता है. So we can say that carbon dioxide is transferred to organic compounds, या carbon dioxide is fixed in organic compounds, that is glucose. Okay.
Carbon is the most important component of all organic compounds, and carbon-carbon chain works as a backbone in hydrocarbons. यानी हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन चेन एज अ बैकबोन काम करता है, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है और कार्बन के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वगैरह। सो कार्बन के इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है और मोनोमर्स को अटैच करके ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाता है। इस तरह जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, तो इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है? Water and carbon dioxide are used as a raw material in photosynthesis. They are the reactants of photosynthesis. यानी photosynthesis के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर की ब्रेकिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वाला हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो ग्लूकोज बनता है। अब उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो ये प्रूफ करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। अर्ली डेज में ये समझा जाता था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकिंग होती है कार्बन और ऑक्सीजन में, और जो ऑक्सीजन बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। लेकिन 1930 में वैन नील ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया जिसके मुताबिक प्लांट्स वाटर की ब्रेकिंग करते हैं और ऑक्सीजन वाटर से आता है, वाटर से रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। In 1937, Hell observed that isolated chloroplasts produce oxygen in the absence of carbon dioxide and presence of light and hydrogen acceptor. 1937 में हेल ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूफ किया कि अगर आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट्स को बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में रखा जाए और उसको लाइट प्रोवाइड की जाए और एक प्रॉपर हाइड्रोजन एक्सेप्टर उसको मिले, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल एब्सेंट है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ वाटर से आ सकता है अगर एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर मौजूद है तो। लेटर ऑन अनदर एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू प्रूव दैट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और इस एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज किया गया, ऑक्सीजन 18। नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16 और ऑक्सीजन का एक आइसोटोप यूज किया गया जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। इस एक्सपेरिमेंट में प्लांट्स के दो ग्रुप्स यूज किए। पहले ग्रुप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज किया गया जिसमें नॉर्मल ऑक्सीजन है, और वाटर वो यूज किया गया जिसमें हैवी आइसोटोप यूज हुआ हो ऑक्सीजन का। और दूसरे ग्रुप के लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हैवी ऑक्सीजन वाला यूज किया और वाटर नॉर्मल ऑक्सीजन वाला। दोनों प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस हुई, जो पहले ग्रुप्स वाले प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो हैवी आइसोटोप था, यानी हैवी ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया पहले ग्रुप वाले प्लांट्स ने। कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल ऑक्सीजन वाला यूज हुए, सिर्फ वाटर में हैवी आइसोटोप मौजूद है ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन, ये हैवी ऑक्सीजन कहां से आया? ये वाटर मॉलिक्यूल से आया। अब जो दूसरा ग्रुप ऑफ प्लांट्स था उनमें जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो नॉर्मल ऑक्सीजन था, और यहाँ पे वाटर में नॉर्मल ऑक्सीजन यूज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में हैवी आइसोटोप यूज हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। So this was a brief introduction to the chapter Bioenergetics. In the next lecture, we will discuss photosynthetic pigments and other aspects of photosynthesis.